Assalamu alaikum. I hope you all are fine and have a great day. So today we are going to study about the factorizing the sum and differences of two cubes. Basically, we are going to see the two formulas a cube plus b cube and a cube minus b cube. By how we are going to use these formulas and factorize our algebraic expression. So let's start with our exercise. So you can see a cube plus b cube. When we are going to open it, we will get a plus b, and the other bracket will be a square minus ab plus b square. The second formula is a cube minus b cube. When we are going to open this formula, we will get a minus b a square plus ab plus b square. Okay, let's do question number 1. We have x cube minus 125. So as we can see, this center sign is negative. This one is also a perfect cube. It's also a perfect cube. Okay, so we are going to solve it by using the a cube minus b cube formula. It will be x ka whole cube minus, when you are going to take the cube root of 125, you will get 5. Okay, so it will be 5 ka cube. How we are going to open it? First bracket will be a minus b, means x minus 5, and the second bracket will be a square, means x square plus a b, two brackets, b मेरे पास क्या है यहाँ पे 5 है, then plus b square, that is 5 square. Okay, so the final answer will be x minus 5 x square plus 5x plus 25, and this will be our answer. Okay, I hope you people have understood this, how we are going to solve it out. Okay, now we have 8x cube plus 1. We are going to apply the a cube plus b cube, this formula. So it will be 2x cube plus 1 cube. We will open it at 2x plus 1 a plus b. Then we have a square plus minus a b plus b square. ठीक है, now it will be 2x plus 1, then 4x square minus 2x plus 1, and this will be our answer. Now the third one is 3p cube q cube minus 81x cube. Now in this question, what we are going to do is, we are going to take 3 as common, because 3 is not a perfect square, 3 is not a perfect cube, and 81 is also not a perfect cube. So you will get a p cube q cube minus 3 2s are 6, 3 7s are 21 x cube. Now we can apply the a cube minus b cube formula easily on the bracket terms. इन दोनों terms में हम easily a cube minus b cube का formula apply कर सकते हैं. Let's apply this. तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 as it is, a cube that is p q का cube minus b cube 3x का cube. Afterwards 3 will remain as it is, a plus b a minus b, then we have a square pq का square plus pq into 3x plus b square, means 3x का square. The whole bracket is square bracket. Now the final answer will be 3 as it is, pq minus 3x, then we have p square q square plus 3 pqx plus 9x square, and this will be our final answer. Okay, afterwards, now we have t to the power 6 minus 64. Now we are going to factorize this term as well. T square, then we have cube minus, when you are going to take the cube root of 64, 64, you will get 4. So it will be 4 cube. A cube minus b cube will be, open it at a minus b, then we have a square, means t square का b square हो गया. Afterwards plus a b plus b square. Now we have
t cube minus 4 as it is. Here we will get t to the power 4 plus 4t square plus 60. Okay, now as you can see, t square minus 4, we can easily apply a square minus b square formula on it, and t to the power 4 plus 4t square plus 16 हम इसको किस में फॉर्म करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में. दोनों चीज़ों को हम एक ही स्टेप में करने की ट्राई करते हैं. क्लियर हो गई बात? चलें जी, ये हो गया a स्क्वायर बनाने के लिए t का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू 4 2ab प्लस b स्क्वायर. अब आप एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे हो गया t टू द पावर 4, 4 2 ज़ा 8. यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, 4. ओके, देन प्लस 4 4 ज़ा 16. ये चीज़ सेट है, ये वाली भी चीज़ सेट है, बट यहाँ पे हमारे पास मिडल में ये वाला जो मिडल टर्म है, ये मेरे पास आ रही है 8t स्क्वायर, जबकि मुझे जो रिक्वायर्ड है वो है 4t स्क्वायर. तो मैं सिंपली क्या करूँगी, माइनस 4t स्क्वायर. आई विल डू दिस, ताकि जब अगर मैं इसको दोबारा रिफॉर्म करूँ ऊपर वाली टर्म के हिसाब से, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी. चलें जी, ये हो गया मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी गिव्स यू a प्लस बी a माइनस बी. ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गिव्स यू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर एज इट इज़ रहा. इसको भी मैंने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. अब देखो इसके ऊपर अगेन आप लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. तो ये हो जाएगा t प्लस 2 t माइनस 2. ये मेरे पास हो गया t स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर. इसको हम एज इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. t प्लस 2 t माइनस 2, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. किसके ऊपर ओपन होता है, a प्लस b, एंड देन वी हैव a minus b, and this will be your final answer. Okay, now let's start with question number 7, but before that I need to tell you that homework is your question number 4 and 6 is your homework. Okay, now question number 7 is the same question as we have done before, so I have just solved it for you. Let me explain it. a cube plus b cube. ठीक है, हमने सबसे पहले इसका फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लिया तो हमारे लिए इजी रहेगा, और जब भी आप जो भी फार्मूला जिस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, अगर आप उसके साथ मेंशन करोगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू ईजिली सॉल्व इट. अब आपके पास हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि ओपन होगा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर पे. ठीक है, ये पूरा आपने कंसिडर किया a क्यूब प्लस ये पूरा कंसिडर हो गया b क्यूब. a प्लस बी मीन्स 2 माइनस एक्स प्लस साइन, ये वाला जो प्लस साइन है, और b मेरे पास टर्म क्या है, y माइनस 2, मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दिया. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं. a स्क्वायर मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2. ठीक है, ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब आप देखो इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो वो जो कि ओपन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि हर टर्म, पहले ब्रैकेट की हर टर्म दोनों दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी. सिमिलर वे में ये वाली जो टर्म है माइनस एक्स वाली टर्म है, वो भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी. क्लियर हो गई बात? चलें आगे करते हैं. मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन मैंने बाहर रखा और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. ये हो गया 2 इंटू वाई 2y, माइनस साइन एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x. सही है, आगे बढ़ें. प्लस साइन एज इट इज़ रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फार्मूला ओपन कर लिया, अब इसको ओपन करते हैं. 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स स्क्वायर. अब आप देखो माइनस ओपन होगा तो सारी जितनी क्वांटिटीज़ हैं उनके साइन हैं ऑपोजिट हो जाएंगे. माइनस 2y प्लस 4, ये हो गया मेरे पास प्लस xy, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आगे हो गया माइनस 2x. अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो कोई भी साइन में कोई इफेक्ट नहीं होगा.
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब आप ये देखें, माइनस 4x, सबसे पहले 4, ये एक 4, ये एक 4, ये एक 4, 4 4 8 8 और 4 12, सबसे पहले हमने 12 लिख दिया। माइनस 4x माइनस 2x बन गया मेरे पास माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आप ये देखो, ये चेक करो, माइनस 2y माइनस 4y, ये मेरे पास बन गया माइनस का 6y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई एज इट इज़ कॉपी हो गया। ये मेरे पास आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास देखो 2 न्यू और फार्मूलाज आ गए, a प्लस बी होल क्यूब जो कि ओपन होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब जो कि ओपन होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने काम करना है। चलें जी, ये हमारे पास क्या बन गया, a क्यूब। देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, सही है। 4 टर्म्स के बाद 2 टर्म्स पे पॉजिटिव साइन है और 2 टर्म्स पे नेगेटिव साइन है। हाँ जी, ये सही है। 2 टर्म्स पे पॉजिटिव साइन है और 2 टर्म्स पे नेगेटिव साइन है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास नेगेटिव फार्मूला था ना a माइनस बी का होल क्यूब, वो था मेरे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, ऐसा ही है। यानी कि सबसे पहले पॉजिटिव आ गया, उसके बाद एक नेगेटिव आना चाहिए। अरेंज करते ही हो जाएगा 27 p क्यूब माइनस 108 p स्क्वायर क्यूब प्लस 144 पी क्यू का स्क्वायर माइनस 64 क्यू क्यूब। अब देखिए यार, इसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया फार्मूले के अकॉर्डिंगली, पहले पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन। अब आप इसको ओपन करो, मीन्स इसका फॉर्मेट बनाओ, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्लियर हो गई बात। चलें अब इसकी क्वांटिटी रखते हैं। 27 का जब आप क्यूब रूट लोगे तो वो हो जाएगा 3 और p, 3p। जहाँ जहाँ मेरे पास क्या आ रहा था, a आ रहा था, मैंने वहाँ 3p पुट कर दिया। अब ज़रा 64 का आप क्यूब रूट लो, 4 4 16, 16 4 64 यानी कि 4 क्यूब। अब जहाँ जहाँ b था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, 4 क्यूब। ये करने के बाद आपने इसको किस पे क्लोज़ करना है, ये चीज़ बनाई। अब इसको क्लोज़ करेंगे a माइनस बी यानी कि 3p माइनस 4q का क्यूब एंड दिस विल बी योर आंसर। दैट्स इट। इतना सा काम था इसमें। सिमिलर वे में आप इसमें भी यही काम करोगे। देखो सब पॉजिटिव है इसलिए कुछ करने की नीड नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, ये वाली अगर हम लास्ट में ले जाएंगे तो ये क्यू क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब जो कि मेरे पास बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलें जी, 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। फॉर्मेट बना लेंगे तो इजी हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब आपने सबसे पहले a को सेलेक्ट करना है। a के लिए आपने 8p क्यूब लिया, p तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि क्यूब ऊपर चला गया इसका। 8 का जब आप क्यूब रूट लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तो जहाँ जहाँ a मेरे पास है अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने क्या पुट कर दिया, 2p। अब q पे आ जाओ तो ये q बाहर आ जाएगा, तो सिंपली q आप किस में पुट कर दोगे, b की प्लेस पे। इसको क्लोज कर दोगे, हो जाएगा 2p प्लस q का होल क्यूब एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इससे रिलेटेड मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 11, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट विल बी ऑल्सो योर होमवर्क, यानी कि डू इट बाय योर सेल्फ, जो कि आपके पास कौन कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होमवर्क के बाद 13 पे आ जाते हैं। 13 में हमारे पास आप चेक करें क्या आ रहा है।
आपके पास आ रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 6 और दूसरा मेरे पास है 2x² माइनस 3x और गया माइनस 55। अब इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते फिर माइनस 55 के बाद इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम एक छोटा सा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं जिसमें ये होगा कि हम एक चीज़ लेट कर लेते हैं, जो कि हम अक्सर करते हैं मैथ्स में, जिससे ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, फिर एंड में हम उसको रिप्लेस भी करा देंगे। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। लेट a इज़ इक्वल्स टू कुछ भी, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो एक्सेप्ट x, क्योंकि हम x ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 2x² माइनस 3x इसमें भी आ रहा है, 2x² माइनस 3x इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कंसिडर किया 2x² माइनस 3x। सो अब ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरे पास, a प्लस 6, और ये मेरे पास किस में हो जाएगा, सिंपली a में, और ये हो गया माइनस का 55। ठीक है, अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, बट ये तो थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। ये हो गया मेरे पास a² प्लस 6a माइनस का 55। क्लियर हो गई बात। चलें जी, अब अभी देखो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ गई। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, a², लास्ट टर्म है माइनस 55, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 55 का a²। अब 11 5 या 5 11 55 बनेगा। अगर आप 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास जो यूज़ होगा a² प्लस 11a माइनस 5a माइनस का 55। a मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला, a प्लस 11 माइनस 5 कॉमन निकाला, a प्लस 11 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, a प्लस 11 और सेकेंड ब्रैकेट हो गया a माइनस 5। जैसे ही मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिप्लेस करा दूँगी। रिप्लेस a इज़ इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x इन अबव। सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a की जगह आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 11, 2x² माइनस 3x माइनस 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इससे देखो क्या हुआ, इससे मिनिमाइज़ हो गई आपकी टर्म। ठीक है, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते एक बहुत लेंदी टर्म आ जाती है जिसमें x की पावर भी 4 पे चली जाती है। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हमने इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ लेट करके, सपोज करके हमने अपने क्वेश्चन को मिनिमाइज़ किया और उसको फैक्टराइज कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। लेट a इज़ इक्वल्स टू y² प्लस 2y, दोनों जगह y² प्लस 2y आ रहा था। a सपोज किया, माइनस 3 इसमें बच गया, प्लस 11 इसमें बच गया, बाकी a कंसिडर हो गया, प्लस 48 हो गया। सिमिलरली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 11, हमारे पास ये टर्म बन गई, प्लस 48 एज इट इज़ कॉपी हो गया। यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इस पूरी टर्म को सॉल्व किया, ये जो वाली टर्म है थर्ड स्टेप में ये सॉल्व किया, तो मेरे पास बन गया a² प्लस 8a प्लस 15। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 15a², इसके फैक्टर्स बनाए 5 और 3 15, और ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, a प्लस 5 a प्लस 3। अब रिप्लेस करा दिया, a की जगह मैंने क्या y² प्लस 2y, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर हो गई बात। नाउ एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ब्रैकेट हैं और आखिर में 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 है। तो हम इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि हम दो ब्रैकेट्स का पेयर बना लेंगे जिसमें हमारे पास दोनों का जो सेंटर वाला यानी कि जो मिडिल टर्म है वो सेम हो। अब आप ये चेक करो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा y² माइनस 1 y। ठीक है, मैं पेंसिल से करके बताती हूँ, ऊपर ये आना चाहिए, ये आएगा मेरे पास y² माइनस y, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y माइनस का 3y प्लस का 12। तो यानी कि ये जो मिडिल टर्म आ रही है मेरे पास 7y आ रही है, और यहाँ तो मिडिल टर्म है नहीं। इट मीन्स मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ और ये चीज़ अरेंज करा लूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लूँ तो सेम हो जाएगा। कैसे, देखो y इंटू वाई माइनस 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया y माइनस 1 y माइनस 3। सही है। अब जब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होने के बाद ये माइनस 3y और माइनस 1y मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4y, और यहाँ पे भी ऑलरेडी मेरे पास माइनस का 4y आ रहा है। सही है, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, अरेंज कराते हैं। y इंटू वाई माइनस 4
इसी तरीके से y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री। और ये काम हमने क्यों किया है, ताकि जो लेड करते हैं ना वो हम कर सकें इस वजह से, और हमारा क्वेश्चन मिनिमाइज़ हो जाए। ये चीज़ मेरे पास बन गई, मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y। क्लियर हो गई बात, ये ब्रैकेट में मैंने क्लोज़ किया। ये मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y प्लस का 4, सॉरी प्लस का 3 बन जाती, सॉरी प्लस का 2 एज इट इज़। अब आप ये चेक करो, ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y एज इट इज़, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4y, बड़े नंबर का साइन आ गया, प्लस का 3 और प्लस का 2 एज इट इज़। ये ब्रैकेट हो गई, फर्स्ट टू टर्म सेम हो गई। लेट a इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया मेरे पास a, ये पूरी चीज़ बन गई मेरे पास a, और ये मेरे पास बन गई a प्लस 3 प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, मल्टीप्लाई करा लो a स्क्वायर और 2 को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2a स्क्वायर, और 2 1 ज़ा ही 2, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1a प्लस 2, कॉमन निकालते हैं a प्लस 2 प्लस 1 इंटू a प्लस 2, a प्लस 2 एक ब्रैकेट और a प्लस 1 एक ब्रैकेट हो गया। नाउ रिप्लेस a इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4y। ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, और ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा ही फैक्टराइज नहीं हो सकता। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। टू सेव द टाइम आई हैव सॉल्व इट एंड लेट मी एक्सप्लेन इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। अब आप इसमें चेक करो कि मेरे पास यहाँ अभी 4 ब्रैकेट्स थे। अब सबसे पहले देखो पेयर्स बना के चेक करते हैं। -5 -6 मुझे क्या देगा, मेरे पास -11। ठीक है, और अगर मैं +3 और +2 करती हूँ तो मुझे क्या देगा, वो प्लस करने पे 5, पॉजिटिव का 5। ये और ये सेम नहीं है, इट मीन्स इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और अरेंज करके चेक कर लेते हैं क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप देखो, मैंने एक अरेंजमेंट चेक, अच्छा एक और अरेंजमेंट हो सकती है। अगर मैं करती हूँ -5 + 3 तो ये मुझे देगा -2, और -6 + 2 ये मेरे पास आ जाएगा -4, यानी कि ये वाली अरेंजमेंट भी सही नहीं है। अब एक और अरेंजमेंट बचती है जो कि है मेरे पास -5 और +2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -3, -6 और +3, मेरे पास आंसर क्या आएगा, -3। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें लेट करने में ईजी रहेगा। और किस तरीके से करके चेक कर रहे हैं, इसके साथ x होगा बेसिकली, तो जो आंसर होगा मिडिल टर्म होगी वो सेम आएगी। अब आप चेक करो, मैंने अरेंज करा है x - 5, x + 2, x - 6, x + 3 + 12। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास ये टर्म्स आ गई। सॉल्व करा, मल्टीप्लाई कराने का सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया x² - 3x - 10, x² - 3x - 18 प्लस का 12। ठीक है, देखो आ गई फर्स्ट दोनों टर्म इक्वल। अब मैंने इसको लेट करवा लिया। लेट करवाने के बाद सिंपली वही रूल मेथडोलॉजी फॉलो किया कि इसके फैक्टर्स बनाए, इसको जो है वो सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद जब ये सॉल्व हो गया तो इसमें क्या करा, बेसिकली रिप्लेस करवाया। रिप्लेस करवाने के बाद दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब आप जब 19 पे चेक कर रहे हो तो देखो -6 - 2 गिव्स यू हाउ मच, -8। -3 और -4 क्या आ जाएगा मेरे पास, -7। ये तो किसी तरीके से वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं -2 और -3 लूँगी, ये भी 5 आ रहा है, और -6 और -4 ले रही हूँ तो ये मेरे पास -10 दे रहा है। -5 -10 यानी कि ये भी इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये किसी भी सूरत कोई भी पेयर काम नहीं कर रहा है। जब मेरे पास कोई भी पेयर काम नहीं करेगा तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, यानी कि इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हो गया x - 6 -2 इंटू x - 6। ठीक है, सिमिलर वे में मेरे पास हो गया x इंटू x - 4 -3 इंटू x - 4 माइनस का 2x² एज इट इज़। ये आ गया मेरे पास x² - 6x - 2x माइनस प्लस 12। ये हो गया x² माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस प्लस 12 माइनस का 2x²। क्लियर हो गई बात। x² माइनस 6 के बाद 7 8x प्लस 12। ये हो गया मेरे पास x² माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x²। अब आप एक चीज़ नोट करो, इन दोनों ब्रैकेट में x² भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो इट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, x² प्लस 12 माइनस 8x, x² प्लस 12 माइनस 7x।
तो मैं ईज़िली लेट कर सकती हूँ और मेरा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा और मुझे सॉल्यूशन में आसानी होगी। वरना अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो इसकी पावर 4 तक जाएगी, जो हाईएस्ट पावर होगी। लेट a इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो मेरे पास जो टर्म बन गई वो हो गई a माइनस 8x, यहाँ हो जाएगा a माइनस 7x माइनस का 2x स्क्वायर। चलें जी मल्टीप्लाई कराते हैं। a माइनस 7x माइनस 8x इंटू a माइनस 7x माइनस का 2x स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 8ax माइनस माइनस प्लस 7 6 8 7 56 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस का 15ax प्लस का 54x स्क्वायर। चलें जी फैक्टर्स बनाएं। 54x स्क्वायर, लास्ट टर्म है a स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो गई 54a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमारे पास क्या आ सकता है, एक फैक्टर आ जाएगा 4 9 नहीं 6 9 सॉरी 6 9 54, और मेरे पास दोनों में नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके मेरे पास 15 दे देगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने में प्लस का 54 आ जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6ax माइनस का 9ax प्लस का 54x स्क्वायर। a इंटू a माइनस 6x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6x। ये हो गया a माइनस 6x a माइनस 9 रिप्लेस करवा देंगे। a इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। यहाँ पे x भी था, सॉरी कॉमन ना। अब मेरे पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 6x एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 9x, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 16, 18 एंड 20, जो कि आप खुद करोगे। बिल्कुल सेम मैथडोलॉजी पे होगा जैसे हमने 15, 17 एंड 19 किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 सेज द एक्सप्रेशन a to the power 6 plus 729 कैन बी रिटन इन 2 ways, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स और सम ऑफ 2 क्यूब। सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 2 स्क्वायर, व्हाट डज सम ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स, यानी कि दोनों टर्म्स का अलग अलग इंडिविजुअल सम। एक क्यूब का स्क्वायर 3 2 हो गया 6 प्लस 27 का स्क्वायर, यानी कि 27 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 729। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर। अब आप इसमें देखें सम ऑफ 2 क्यूब्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 9 का क्यूब, बिकॉज 9 का क्यूब इज़ हाउ मच 729। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब गिव्स यू a प्लस b, देन वी हैव a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर ओपन कर लोगे तो a प्लस बी मेरे पास सिंपली क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 a की पावर 4 प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 9 9 81, एंड दिस विल बी योर आंसर। उन्होंने बोला था जब सम ऑफ 2 स्क्वायर किया, यानी कि इन दोनों को सम ऑफ 2 स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर, जो हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर आना चाहिए वो स्क्वायर आना चाहिए। तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आया, अंदर जो टर्म्स आई वो ऐसी टर्म्स लिखेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रियल आंसर आ जाए। सिमिलर वे में जब क्यूब किया तो अंदर हम ऐसा टर्म लिखेंगे जिसके ऊपर क्यूब अप्लाई करें तो हमारे पास अगेन सेम क्वेश्चन वाला आंसर आ जाए। स्क्वायर में कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, बट a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सेज कि एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। चलें जी, अब आप ये चेक करो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये अगर आप चेक करो सारे पॉजिटिव हैं तो ये हो सकता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हो रहा है ये वाला फार्मूला अप्लाई।
करके चेक कर लेते हैं इसको। इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं, फॉर्मेट, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसका ज़रा क्यूब रूट लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2। ठीक है, इसका क्यूब रूट लेंगे, ये हो जाएगा टी टी टी, बन गया, वही चीज़ बन जाएगी। 3 2 ज़ा 6 टी स्क्वायर, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब इसको क्लोज़ करोगे, ये किस पे क्लोज होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी का होल क्यूब। ईच फैक्टर 2 प्लस टी 2 प्लस 3 2 प्लस टी, 3 फैक्टर्स में लिखे। अब ये बताइए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, दिस इज़ अ बाइनोमियल टर्म। ठीक है, ईच टर्म रिप्रेजेंट्स अ बाइनोमियल टर्म। ओके, so I hope you people have understood all the things. If you have any query, you may ask